One online class 7, subject science, chapter 15, part 2, sources of water, पानी का स्रोत. The prime sources of water on earth are rainwater, surface water and underground water. पृथ्वी पर पानी के प्रमुख स्रोत वर्षावात, सतही जल और भूमिगत जल है. रेन वाटर, बारिश का पानी. One of the major sources of natural water in rainwater. Rainwater is the purest form as it is formed by a natural process of distillation of surface water, which further involves evaporation and condensation. The first showers of rainwaters are not so pure because they carry dust particles, germs, bacteria, and some gases present in the atmosphere. A large part of agriculture's land in our country depends upon rainwater for irrigation. Rainwater also fills up the water bodies and percolates as underground water for future uses. अब वर्षा जल के प्रमुख स्रोतों में से एक वर्षा जल है. वर्षा जल सबसे शुद्ध रूप है क्योंकि यह सतही जल के आसवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिसमें आगे बाष्पीकरण और संघनन शामिल होते हैं. पानी की पहली बौछार इतनी शुद्ध नहीं है क्योंकि वह धूल के कणों, कीटाणुओं, जीवाणुओं और वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसों को ले जाते हैं. हमारे देश में कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर करता है. वर्षा जल भी जल निकाय और भविष्य के उपयोग के लिए भूमिगत जल के रूप में भरता है. सरफेस वाटर, सतही जल. वाटर विच फ्लो over the earth's surface, which is easily available for direct consumption, is called the surface water. The different sources of surface water are tanks, ponds, streams, rivers, seas, and oceans. Seas and oceans cover 70% of the Earth's surface. Water is in the rivers comes from rain and melting of the snow from the hills. Rivers flow down from the hills as to seas and oceans and carry a lot of minerals and impurities dissolved in it. Hence, that water is not suitable for direct consumption. Water in the seas and oceans contains dissolved salt, especially common salt, and hence it is salty or saline. This condition of seawater is called salinity. Efforts are being made to remove the salt from seawater to make it fit for drinking and other purpose. This process is called डिसलाइनेशन. सतही जल, पृथ्वी की सतह पर बहने वाला पानी जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए उपलब्ध है, सतह जल कहलाता है. सतही जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे टैंक, तालाब, धाराएं, नदियां, समुद्र और महासागर हैं. समुद्र और महासागर पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं. नदियों में पानी बारिश से आता है और पहाड़ियों से बर्फ के पिघलने से. नदियाँ पहाड़ियों से समुद्र और महासागरों की ओर बहती हैं और खनिजों और अशुद्धियों को नष्ट करती हैं. इसलिए यह पानी प्रत्यक्ष खपत के लिए उपयुक्त नहीं है. समुद्र और महासागरों में पानी में घुले हुए लवण होते हैं, इस विशेष रूप से सामान्य नमक, और इसलिए यह नमकीन या खारा होता है. समुद्री जल की इस स्थिति को लवणता कहा जाता है. इसे पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए समुद्र के पानी से ऊंचाई को हटाने का प्रयास किया जा रहे हैं. यह प्रक्रिया अलवणीकरण को रोकती है. ग्राउंड वाटर, भूजल. रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द सोर्सेस सीप डाउन थ्रू soil. It keeps on flowing through various layers of the soil till it reaches the hard rocks under
Next, the process of seeping of water under the ground is known as infiltration. This water goes on accumulating on top of non-porous hard rocks under the ground in the form of water reservoir. This water reservoir thus formed is called the groundwater and underground water. Sometimes groundwater accumulates between layers of hard rocks. This is known as an aquifer. Aquifers can be drawn with the help of tube wells and hand pumps. वर्षा जल और अन्य स्रोत से पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है, जो जब यह हाथ की चट्टानों के नीचे नहीं पहुंच जाता है, तब यह एक ठोस की विभिन्न परतों पर से बहता रहता है। जमीन के नीचे पानी की स्कीपिंग बहने की प्रक्रिया, इसमें यह घुसपैठ के रूप में जाना जाता है। यह पानी के जलाशय के रूप में जमीन के नीचे गैर झरझर कठिन चट्टानों के ऊपर से जमा हो जाता है। इस प्रकार बने इस जलाशय को भूजल या भूमिगत वाष्प कहा जाता है। कभी कभी कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूजल जमा हो जाता है। यह एक जल के रूप में जाना जाता है। एक्वीफर्स के पानी नलकूप या हैंडपंप की मदद से खींचा जाता है। The porous rock are saturated with water at a contained level below the surface, which is called as the zone of saturation, and the upper level of zone of saturation is called the water table. The water table varies from place to place. At some places where there is low rainfall, it might be a meter deep, while at another place where there is high rainfall, it might be as deep as 100 meters of or might be more. अब जो चट्टानों की सतह के नीचे एक निश्चित स्तर पर पानी के सतिप्त किया जाता है, जिसे टन के क्षेत्र के रूप में, और सतिप्त के क्षेत्र के ऊपरी स्तर को जल तालिका कहा जाता है। पानी की मेज और से हर जगह में भिन्न भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर जहाँ कम वर्षा होती है वह 1 मीटर गहरी हो सकती है, जबकि दूसरी जगह पर पुनः उच्च वर्षा होती है, यह 100 मीटर तक गहरी हो सकती है या अधिक हो सकती है। ग्राउंड वाटर सप्लाई आर रिप्लेस्ड और रिचार्ज्ड बाय रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो that seeps down into the cracks zone surface. In some areas of the world, people face serious water shortage because groundwater is used faster than it is naturally replenished. In other areas, groundwater is polluted by human activity. अब हम देखते हैं, जब पानी भूजल आपूर्ति फिर से भर दी जाती है या बारिश और बर्फ के पिघलने से जमा हो जाती है एक सतह से, दुनिया के कुछ क्षेत्रों में लोगों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भूजल तेजी से प्राकृतिक रूप से फिर से भी भरा जाता है, या अन्य क्षेत्रों में भूजल मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित होता है। Water is aquifers is brought to the surface naturally through a spring or can be discharged into lakes and streams. Groundwater can also be obtained by digging wells or sinking tube wells. This water can be brought to the surface by a pump. Slow well might go dry if the water table falls below the bottom of the well. Some wells called artesian wells do not need a pump because of natural pressures that force the water and up and out of the well. अब हम देखते हैं एक्वेफर्स के बीज से प्राकृतिक रूप से सतह पर लाया जाता है, जिसे बसंत के माध्यम से झीलों में उतारा जाता है और कुएं या
स्कीकिंग ट्यूबवेल को खोदकर टीम ग्राउंड वाटर में भी प्राप्त किया जाता है। इस पानी को एक पंप द्वारा सतह से यूज किया जाता है। यदि कुओं के तल से पानी की इमेज नीचे गिरती है तो उथले कुएं सूख जाते हैं और कुछ कुओं, जिन्हें आर्टिफिशियल कुआं कहा जाता है, वह प्राकृतिक दबावों के कारण पंप की आवश्यकता नहीं होती है, जो पानी के कुएं से ऊपर और बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, पानी की श्रेणी का विश्लेषण। रेन वाटर replenishes the groundwater by seepage through the soil. The problem arises when we pump out excess water from the ground, then the rate at which it is recharged by the rain. बारिश के पानी मिट्टी के माध्यम से रिस कर भूजल को भी भर देते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उससे दर से जमीन के पानी बाहर निकालते हैं जिस दर पर उसे बारिश द्वारा भरा जाता है या रिचार्ज किया जाता है। Then the water tables goes down and it is said to have been depleted. फिर पानी की इमेज नीचे जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह समाप्त हो जाती है। Here are some reasons for the depletion of water table. जल तालिका के घटने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। पॉपुलेशन एक्सपेंशन, जनसंख्या विस्तार। डिमांड ऑफ वाटर हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वेरियस यूजेस ऑफ water and increase in the standard of living further increase the demand for water year after year. जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की मांग बढ़ी है। पानी के विभिन्न उपयोग और जीवन स्तर में वृद्धि के कारण वर्ष दर वर्ष जल की मांग में और वृद्धि होती है। पॉल्यूशन, प्रदूषण। वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन टुगेदर contribute to the reduction of water quality. Sewage, oil discharge from industries, waste dumping into water bodies, radioactive waste from mining activities, as well as dirty water from sanitation work in hospitals, hotels, oil companies, schools and restaurants, all in up polluting water. अब हम देखते हैं प्रदूषण। जलवायु और भूमि प्रदूषण मिलकर पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। जिस गंदा पानी सीवेज उद्योगों से तेल निर्वहन, जल निकायों में अपशिष्ट डंपिंग, खनन गतिविधियों में रेडियोधर्मी अपशिष्ट में कमी लाने में योगदान करते हैं। साथ ही अस्पतालों, होटलों और कंपनियों, स्कूलों और रेस्टोरेंट में स्वच्छता कार्य का गंदा पानी खत्म हो जाता है, प्रदूषणकारी पानी हो जाता है। urbanization, शहरीकरण। Cities and growing and expanding more than ever before. Cities also tend to hold more people than towns and villages. This means there is an increased need to take care of sewage cleaning, construction and manufacturing. शहर पहले से कहीं अधिक विकसित और विस्तार कर रहे हैं। शहर के कस्बों और गांवों की तुलना में अधिक लोगों को प्रदूषण युक्त पानी मिलता है। इसका मतलब यह है कि सीवेज सफाई को हमें हमेशा ध्यान रखना आवश्यक होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। Setting up of new factories and industries has increased the demand of water. Water is used at almost every stage of production of things that we use. This has put a heavy load, especially on freshwater ecosystem. नए कारखानों और उद्योगों की स्थापना से पानी की मांग बढ़ रही है। पानी का
उपयोग में जाने वाली चीज़ों का उत्पादन के लगभग हर चरण में उपयोग किया जाता है। इससे विशेष रूप से मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी बोझ डाल दिया गया है। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। Roots of tree have the ability to wind soil and thus enable to hold water. However, destruction of forest by fire, logging and farming has exposed soil moisture and water bodies to the sun intense heat, leaving them died out. Thus, indiscriminate cutting of trees results in decrease of rain, thereby affecting the recharging of ground water. पेड़ों की जड़ों में मिट्टी के बांधने की क्षमता होती है और इस प्रकार पानी का धारण करने में सक्षम होते हैं। तथापि आग से जंगल का विनाश, लॉगिंग और खेती ने मिट्टी की नमी और जल निकायों को सूरज की तीव्र गर्मी में बदल दिया है, जिससे वह सूख गए हैं। इस प्रकार पेड़ों को अंधाधुंध कटाई से बारिश की कमी आती है, जिससे भूजल में बढ़ने की संभावना कम होती है और उसे प्रभावित करता है। ग्लोबल वार्मिंग। The increase in the global temperatures causes changes in the seasons, which can again lead to a decrease in the rain that falls on the earth, thereby causing water scarcity. वैश्विक तापमान में वृद्धि में से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो फिर से हो सकता है पृथ्वी पर गिरने वाली बारिश की कमी, जिससे पानी में कमी हो जाती है, भूजल का कमी हो जाती है। ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, भूजल का अत्यधिक दोहन। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर शॉर्टेज इज द replacement of groundwater. Increase in human population has adversely affected the natural process of replacing groundwater. The demand of water is more compared to the amount of water that get replenished naturally. भूजल की कमी से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या में से एक भूजल की पुनः पूर्ति है। मानव आबादी में वृद्धि ने प्राकृतिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भूजल को फिर से भरना पानी की मांग की तुलना में पानी की मात्रा की तुलना से अधिक है, जो स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। थैंक यू।